This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Hello learners, welcome back to the next session of the MST002, and the block we are trying to complete is the third block, that is regression analysis. Today we will cover unit number 10 or 11. Okay, today there are only 5 participants there. I don't know why. Okay, it is visible. Yes, it is visible. Yes, sir, it's visible. Yeah. This is the statistical inference in simple linear regression. And when we come to the statistical inference, then we deal with the estimation and testing of hypothesis. So in this unit, we will study how to estimate the unknown parameters A and B, and yes, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है. Yes, and so we in statistical inference we study the how we estimate the parameters. Parameter means the unknown coefficient, that is A and B regression coefficients, and how we will test the hypothesis about the regression coefficients. So this is similar procedure as we have studied in MST 004, and okay, so yeah, so now you have to study there. In this last unit, we have studied that the value of B we can estimate with the help of data by the formula, this one, and A can be estimated y bar minus B cap x bar, and in that unit we have studied that B is estimated as summation xy minus summation x summation y upon n, and the lower is summation x is square minus summation x whole is square divided by n. Okay, we have used this formula in the last unit, so this can be written as so as you wish. Which formula can you use? So to estimate the parameter A and B, we require the sampling distribution of A and B, and for that we have to find out the mean and variance of the distribution, and search the sampling distribution of A and B. Now here variance of A, variance of A, it is not in a clear form, and variance of B is sigma square upon SSX, and where SSX is this term is known as the sum of square due to x, and this term is known as the SSXY, that is sum of square between x and y, and variance here the formula of that one is this formula is also mentioned in the unit number 9, and here it is, yes, it is sigma variance of A is sigma square 1 upon n plus x bar square upon SSX, and this one is this. So we observe that the distribution of A cap, estimator A cap, is normally distributed with mean A, and variance 1 upon n, is variance sigma square
bracket 1 upon n plus x bar is square upon SSX. Okay, so we can use this concept for testing of hypothesis about A, and similarly the distribution of y of B also observed at is normal distribution, where and mean of this is B and variance is the variance is sigma square upon SSX, means sum of square due to x. Okay, and so the mean of this is A and variance of this, and as you know that if we make the test statistic, then test statistic can be defined as t minus expected value of t over the standard deviation of t. Standard deviation, yeah, is square root of variance of t. So we can use this concept here for developing the test statistic for A and developing for test statistic for B. Now we will see how we use this concept. Okay, first of all, we have taken the example given using the data of example 1 of 9. Calculate SSRES as an estimator of this. The formula of RR, sum of square due to residual, is also given, so we can easily estimate sigma square by the formula and use this estimate for calculating the variance of A and variance of B. And here we have also find out the variance of A, and we know that variance of A is equal to sigma square and 1 upon n plus x bar square upon SSX. Okay, so and here since sigma is unknown, so we estimate sigma by the SSRES and put the value of this here, and 1 upon n is the sample size, yeah, number of observation, and from the data you can easily find out x bar and square this, and also you can find out the SSX, means sum of square due to x. So after these, put these values in this one, we can get the we can calculate the value of the variance of A cap. Okay, in similar way you have to calculate the variance of B cap. So only you have to use the formula. Okay, here the this can be estimated by with the help of ये formula मैंने कल भी describe किया था, summation RI square upon n minus k, where k is the number of the unknown parameter and n is the number of observation. So number of observation, I think in that example is 10, and there are two parameters A and B, so the so we can divide by this by the n minus k means 8. So you can easily calculate the variance of a variance. Now we come on the testing, hypothesis testing of regression coefficient. Why it is necessary? Because in the last class we have also explained that if we test b is equal to 0 and this hypothesis is accepted, it means that the regression line becomes S. So there is no influence through the X. So there is no meaning of the regression line. So when we study the regression line, we have also test the hypothesis b is equal to 0 or not. If this hypothesis is rejected, then we can say that there is a significance of X in estimating the Y. So we can develop the formula for the testing hypothesis as we have explained in. So we can test the hypothesis A is equal to A0 against A not equal to A naught, and B is equal to B naught, and against B not equal to B naught. They are the two-tailed hypothesis, and for testing this hypothesis, we can easily make the test statistic Z is equal to A minus, as we have explained, T minus expected value of T, and variance square root of variance of T. So here T is equal to A, so we can put the value of T as A cap minus mean of this was A, and variance is this one, so square root of
sigma square and then. Generally, when sigma square is unknown, then then at the time this statistics does not follow the Z distribution. At the time it follow the T distribution. So here we when sigma square is unknown and we estimate the sigma square with the sum of square due to residual, so then this becomes T. So the next formula will be T when sigma square is unknown. A cap same रहेगा, बस केवल T की जगह यहाँ पे क्या होगा, उसका estimator आ जाएगा. And this is the degree of freedom is n minus k, and k is here, k is equal to 2, so the degree of freedom n minus 2. And in the way of testing the draw the conclusion about the hypothesis is similar as the MST 004, that is, if calculated value of the T or Z is greater than the tabulated value, we reject the hypothesis. So here we generally want to reject my hypothesis. Otherwise, there is no significance of the intercept, or there is no significance of the variable, independent variable, regression variable. So in the similar way, we can develop the test statistics for the parameter B, and we have to test B is equal to B0 and B not equal to B0. But generally in regression analysis, we are interested to B is equal to B, not B0. We are interested in B is not equal to 0 or not. So we generally test B is equal to 0 and B not equal to 0. But here it is give the here we are giving the general procedure, so we have taken as the B is equal to B0 and B not equal to B0. And in the similar way, we can also develop this. And if sigma square is unknown, then the test is just converted to the T. And also this distribution is follow the T distribution with n minus 2 degrees of freedom. So we calculate, we observe, we find the, we read the tabulated value at n minus 2 degrees of freedom from the table. And the rule for the acceptance rejection is similar as we have explained. If calculated value is greater than, if calculated value lies in the rejection region, then we reject the hypothesis. Otherwise, we do not reject the hypothesis. Now, in example number 2, given in section number, use the data of example 1 given in the section, test the hypothesis at alpha is equal to 0.05. So here we have tested the hypothesis B is equal to 8 or B not equal to 8. And there are the 3 types. Generally, we use the 2 type. We use the 2-tail hypothesis. Okay, as if the alternative hypothesis is 2-tail, then we said that the test is 2-tail. And if it is 1-tail, then we said that 1-tail. It is the right tail and it is the left tail. Okay, it is the 2-tail. Generally, we test the 2-tail hypothesis. But here in this question, it is also mentioned to test the right tail test and left tail and single tail hypothesis. So we have also solved this. Yes. So now for that we required, first of all, we see that the sigma is known or unknown. In this example 1, the sigma is not given. So we use the test, T test, and the formula to T test is B minus B naught, या B is, अगर इसको cap मान रहे हैं तो B naught upon variance, square root of variance, it means sigma square, and divide by SS x. So in this last question, we have calculated this one and this one. So we directly put the values in this formula and calculate the calculated value of T. So what will be the, and तो सिमिलर वे में हमने यहाँ पे देखिए, इसने बी कैप भी निकाल लिया है. आप हम पहले भी निकाल चुके हैं इस एग्जांपल के लिए, ए भी निकाल लिया इसने तो, और ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाह रहा तो हमने टी टेस्ट लगा दिया, वैल्यू पुट अप करी, केवल आंसर आ गई. अब इसकी वैल्यू हम दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू. नाउ वी फाइंड द टेबुलेटेड वैल्यू. टेबुलेटेड वैल्यू इज टेकन ऑन द n minus k, k is 2, तो 8 degrees of freedom, and it will be 2.31. since कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वी डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस मान के चले थे, वो इट इज म्यू b इज इक्वल टू 8. तो ये प्रूव. ठीक है. सिमिलरली वी कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट भी कर सकते हैं. उसके लिए बस क्या चेंज होगा, टेबुलेटेड वैल्यू चेंज हो जाएगी. तब हम उसको वन टेल पे देखेंगे. तो वन टेल पे देख लेंगे तो वन टेल की टेबुलेटेड वैल्यू है हमारी, इट इज 1.86. तब भी रिजेक्ट
हाइपोथेसिस हमारी क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड अगर हम राइट टेल की बात करें तो राइट टेल पे क्या हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये भी हमारी क्या है, कम हो रही है, तो ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तीनों हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। वैसे तो मैंने बहुत तेजी से डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों को, पता नहीं समझ में आया नहीं आया आपके। एनी क्वेरी? नो सर। चल इसमें लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों टेस्ट में b इज इक्वल टू 80 रखेंगे सर, जैसे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं तो रखेंगे? हम MST 4 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, अगर ये b 8 से ग्रेटर है तो शुड बी 8 होना चाहिए, ठीक है, तो आप ये भी रख सकते हैं। पर जनरली मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे केवल टू टेल ही हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, बाय द वे यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा तो हमने कर रहे हैं, अदरवाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे वन टेल टू टेल नहीं होगा, बस केवल ये होगा टेस्ट करो कि हाइपोथेसिस b इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है, फिर आपके ऊपर है कि आप वन टेल बनाते हैं टू टेल बनाते हैं, तो हम जनरली टू टेल ही बनाते हैं, पर यहाँ मेंशन था इसलिए हमने ऐसे लिया। ये कुछ बुक्स में क्योंकि ये अलग अलग राइटर्स ने लिखा है तो कुछ बुक्स में बी जो हमारी नल हाइपोथेसिस उसको हम इक्वल टू ही लेते हैं, मैंने वहां भी लिखा है MST 4 में भी, पर जो हमारा मैंने MST 4 बनाया था तो ये जो है ये इंटरनेशनली ट्रू नहीं है, ये इंडिया में दो तीन बुकें हैं जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को जीरो एज ए इक्वल टू रखते हैं, बाकी इंटरनेशनल जो बुक्स हैं वो सब में इसको अल्टरनेटिव बनाते हैं, इसका यानी अपोजिट ही बनाते हैं, तो जनरली नल हाइपोथेसिस हमारी ये होती है वन टेल के लिए या ये हो, ठीक है। चलिए तो फिर आगे लेते हैं। केवल देखिए यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, केवल आपने फार्मूला बुकलेट में ऑलरेडी गिवन होगा, आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुटअप करनी है, ये सब आप पहले ही निकालना सीख चुके हैं, तो इनकी वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे आपको टी टेस्ट और जेड टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगर सिग्मा जनरली अननोन ही रहता है तो आपको टी टेस्ट ही लगाना पड़ेगा, ओके। तो एग्जाम में कोई इस तरह क्वेश्चन आता है उसमें आपसे देखिए 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले तो सिंपल रिग्रेशन लाइन फिट करा ले, उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेट करवा ले, इनके सिग्मा को सिग्मा कैप निकलवा ले, जब सब चीज निकलवा लेगा तो इसको एक दो नंबर का ये भी दे देगा कि आप ये भी टेस्ट करो हाइपोथेसिस के b इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ये भी 2 मार्क्स में जनरली पूछ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इंपॉर्टेंट के हिसाब से, है ना। तो आप इसे देखिए क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, हमने MSc 2 में भी इसको पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर बाय द वे चलिए मैं देखो कहाँ से ले उसे में, यस, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द R square, R square where R is the correlation coefficient and R square is represented by the coefficient of determination. And what is the interpretation of R square? R square means coefficient of determination explain the variation in the value of y ascribable or due to the independent variable या regression. It means that अगर हम कोई लाइन ये फिट कर रहे हैं y is equal to a plus bx, ठीक है, तो अब y में कितना इन्फ्लुएंस x की वजह से हुआ, अगर हमें ये देखना हो कि x की वजह से y में कितना चेंजेस आ रहा है, तो फॉर दैट वी कैलकुलेट द R स्क्वायर, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये बताता है कि y में वेरिएशन x की वजह से y में कितना वेरिएशन हुआ। तो कुछ लोग तो इसे बाद में स्टडी करते हैं, मेरा मानना है कि हम R स्क्वायर को शुरू में ही स्टडी कर लेना चाहिए, तभी हम इसको आगे रिग्रेशन में यूज कर सकते हैं। जब भी आप अगर हम जब एक्सेल से इसके लैब करेंगे, कल मैं इसकी लैब लूंगा रिग्रेशन की, तो वहां पे भी हम R स्क्वायर पहले ही निकाल के देख लेते हैं कि अगर R स्क्वायर हमारा लार्ज होता है तभी हम रिग्रेशन की एनालिसिस करेंगे, अदरवाइज अगर R स्क्वायर कम हुआ, R स्क्वायर कम होने का मतलब क्या है कि y में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत कम है ड्यू टू द x, तो जो x की वजह से y में बहुत कम चेंज है, इसका मतलब अदर फैक्टर उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो फिर x और y में रिलेशनशिप का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो R स्क्वायर लार्ज होगा तभी हम रिग्रेशन की स्टडी करें, ठीक है। तो R स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, R स्क्वायर इज एक्सप्लेन द वेरिएशन इन y ड्यू टू x, ये x की वजह से y में कितना वेरिएशन हुआ, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोरिलेशन है, कोरिलेशन का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था वहां पे कोरिलेशन का जो फार्मूला MST 2 पढ़ रहे थे, तो वहां था अगर मैं अपने जो हम अभी करके आए उसके हिसाब से देखें तो ये बनता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एक्स वाई इन अपॉन
सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एक्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वाई। तो ये हमारा आर का ये फार्मूला है हमारा आर का। तो आर स्क्वायर का फार्मूला क्या है, इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो ये आप निकाल चुके, जब आपने सिग्मा निकाला था तब ये निकाला था, आपने ये भी निकाल, जब हमने वेरिएंस निकाला तब आपने ये निकाला, तो ये और निकालना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये और निकाल के हम आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मान लेते हैं 96.96 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 96% चेंजेस इन वाई ड्यू टू एक्स। एक्स में वाई में जो 95% 96% चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एक्स की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी अच्छा सा लिखा था कहीं पे, ये तो बताया इसने से कैसे निकाले, ये तो खैर जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। ये फार्मूला है आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, अच्छा आर स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर व्हिच इन्वॉल्व्स सेगमेंट। क्या लिखा है कुछ, हाँ, दिस इज ऑलवेज, यह आर स्क्वायर की बात कर रहे हो, तो आर की तो वैल्यू आपने पढ़ी थी कि वो थी -1 से 1, और आर स्क्वायर कितना होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज नोन एज द वेरिएबिलिटी अकाउंटेड फॉर बाय एक्स। नाउ दिस इज नॉट यूनिट फ्री। ये जो अगर हम खाली इससे भी कर सकते थे, कह रहा है कि ये पर ये यूनिट फ्री नहीं आता, इसको यूनिट फ्री बनाने के लिए हमने इससे और डिवाइड किया। टू मेक इट्स यूनिट फ्री वी डिवाइड इट द टोटल वेरिएबिलिटी इन वाई अकाउंट बाय मीन SSY। The ratio of the variability in y counted by this is the total variability। बस इसकी कोई जरूरत नहीं। और क्या रह गया इसमें, देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया हुआ एक बार, वहां पे क्या किया इन्होंने, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ पे गया, आपसे पूछा था उसने, मैं देख लूँ जरा, मुझे क्वेश्चन याद आ जाएगा। शायद कुछ इस तरह क्वेश्चन था, आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेश क्वेश्चन पेपर, ये दिया हुआ था वहां पे SSRES यानी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, ये दिया था, इसकी कुछ वैल्यू दे दी थी, और कुछ शायद SSX की वैल्यू दी थी और SSY की वैल्यू दी थी शायद, और कहा था कि रिग्रेशन सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू बताइए। तो फार्मूला तो बुकलेट में ये दिया हुआ है, पर ये इसको हमने कुछ और भी नाम दिया था, इसको हमने यहाँ पे दिया था, एक मिनट रुकिए, एक मिनट उसमें जाना पड़ेगा, मैं वापस इसमें जाना पड़ेगा, एंड सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक में, वहाँ पे अपने कुछ फार्मूला डिराइव किया था ना इसके लिए, RS यस, ये वैल्यू हमारी क्या है, ये देखिए आप, एक मिनट नहीं, ये तो नहीं है, इसकी लेस करके ये RSS की वैल्यू ये है, तो इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये गिवन था आपको, इसका एक फार्मूला भी है शायद, आगे मैं देख के बताऊंगा, चलिए अभी खैर छोड़ देते हैं। इसका एक फार्मूला इस टर्म में भी है, आर स्क्वायर का फार्मूला मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा क्या था, आर स्क्वायर का फार्मूला कुछ इस तरह इसकी टर्म्स में भी है, SSRES अपॉन शायद SSY है शायद, ये देख लेते हैं, आगे आ जाएगा शायद। तो इस टर्म्स में फार्मूला यूज करना था आपको, इसकी वैल्यू पता थी और इसकी वैल्यू पता थी, इस वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वैल्यू फार्मूला पुट अप करनी थी, पर फार्मूला थोड़ा मॉडिफाइड करके था वो, क्योंकि यहाँ पे तो फार्मूला ये दी गिवन है, जब तक आपको ये दोनों चीज नहीं पता होगी तब तक नहीं निकाल सकते, और यहाँ पर दिया क्वेश्चन में था सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल, तो ये तो रेसिडुअल की हेल्प से ये निकालना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू पुट अप होगी, या मैं बताऊंगा आपको भी, शायद है आगे कहीं मैंने देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है जो मैं बता रहा था कि it is the square of the correlation coefficient between x and y, r square, since r square lies r lies between 1 2, तो r square lies 0 1, it is closer to 1 when the linear relation between very good। तो अगर ये वैल्यू इसकी क्लोज टू 1 है तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप बनी है वो अच्छी बनी। इन दिस केस मोस्ट ऑब्जर्वेशन लाई वेरी क्लोज टू द फिटेड लाइन, सारी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो लाइन के ही आसपास कहीं मूव करेंगे,
When r square is closer to 0, the relationship between x and y is very poor. The most observation lies away from the fitted line. तो जब मोस्टली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, लाइन आप फिट करेंगे उससे ज्यादा दूर होंगे. ओके, तो ये जो आर स्क्वायर है, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि लाइन फिट करो और उसको टेस्ट करो, गुडनेस ऑफ फिट करो उसका. तो गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि आप आर स्क्वायर फाइंड आउट करके देखोगे. अगर आर स्क्वायर लार्ज आ रहा है तो कहोगे कि जो हमारी लाइन है वो गुड फिट हुई, जैसे यहाँ पे लिखा है. यस, एंड कमेंट ऑन द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन लाइन. तो आपको गुडनेस ऑफ फिट चेक करना है रिग्रेशन का, तो आर स्क्वायर चेक करना पड़ेगा. अगर आर स्क्वायर लार्ज है तो हम कहेंगे कि जो हमारी लाइन है वो अच्छे से फिट हुई है, अदरवाइज नहीं. तो यूजिंग एग्जांपल नंबर वही चल रहा है, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो आर स्क्वायर के लिए जो जो टर्म चाहिए आपको सब आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप करी तो 0.93 आ गया. तो ये वेरी क्लोजर है टू 1, तो हम वी कैन से दैट द रिग्रेशन लाइन इज ए गुड फिट. तो इसका मतलब क्या है, रिग्रेशन लाइन एक गुड फिट हुई है. अगर छोटा हो तो हम कहते हैं पुअर फिट हुई है. अब क्या कह रहे हैं कि आर निकालो, तो आर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर आ जाएगा. ये तो कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है. ठीक है, इससे भी निकाल के देखा है उन्होंने, पर इस जरूरत क्या है, जब आर स्क्वायर तो आर निकालेंगे डायरेक्ट इससे ही, इसकी जरूरत क्या है. अब आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर. एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है कि जैसे जैसे हमारे इंडिपेंडेंट या रिग्रेशियर वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो इसका जो न्यूमरेटर है, यानी जो इसका न्यूमरेटर यानी ये वाली चीज, ये क्या होती है, ये इंक्रीज करना शुरू कर देती है. तो इससे क्या होगा कि जो इसका वैल्यू है वो ऐसा लगेगा हमें बहुत लार्ज आ गई, और लार्ज आने पे जबकि ऐसा नहीं है, यानी जो वेरिएबल का जो हमारे रिग्रेशन का इफेक्ट है वो कम है, पर नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ने से आर स्क्वायर बढ़ने लगता है. तो हमें तो लगेगा कि वाकई इनके बीच में अच्छी कोरिलेशन होगी, ये हमारी रिग्रेशन अच्छी फिट होगी, बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ रिग्रेशन आर स्क्वायर आल्सो इंक्रीजेस. whereas डिनोमिनेटर इज फिक्स, डिनोमिनेटर फिक्स रहता है पर न्यूमरेटर इंक्रीज होने लगता है. जब न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो आर की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ हमारे जब नंबर ऑफ रिग्रेशन बढ़ेंगे तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. और एडजस्ट करने के लिए क्या फार्मूला है, वो है 1 माइनस आर स्क्वायर एन माइनस 1 एन माइनस के, वेयर के इज द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, यस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. पर जनरली हम देखिए इसका यूज हम थ्योरी में तो नहीं करते, क्योंकि थ्योरी में तो बहुत बड़े हो जाते हैं क्वेश्चंस. तो पर जब हम इसकी मल्टीपल रिग्रेशन स्टडी करेंगे लैब में, तब हम इसका यूज, तब हम वहाँ पे आर ना करके एडजस्टेड आर स्क्वायर चेक करेंगे. और जो हमारा एक्सेल है वो ऑलरेडी इसको देता है, तो वहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. वहाँ पे इसको ऑलरेडी आर स्क्वायर वो कैलकुलेट करके देगा. तो वहाँ पे हम जब बताएंगे कि हमारी लाइन गुड फिट हो रही कि नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम आर की कंपेरिजन न करके आर स्क्वायर करेंगे. ठीक है, बस यही यूज है इसका, और कुछ नहीं. तो डिटरमाइन कर रहे हैं तो सब कुछ है, तो निकाल सकते हैं. अब आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे हम इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्रेंस में हम उसका एस्टिमेशन देखेंगे, है ना, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, टेस्टिंग करेंगे. तो हमने जो पैरामीटर्स थे तो उनकी तो कर ली, पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो हम जो वाई कैप निकाल रहे हैं रिग्रेशन की हेल्प से, तो इसकी एक तो इसकी वैल्यू किसी एक पॉइंट पर निकाल ही सकते हैं. जी हमारी इक्वेशन थी a प्लस बी एक्स, तो हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे तो y का हम एस्टिमेट निकाल सकते हैं. तो कह रहा है कि इसके लिए क्या हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बना सकते हैं वाई कैप का, तो बना सकते हैं इसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल. और कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है हमारा, अगर आपको याद हो MST 2 में 4 में पढ़ाया था, टी माइनस जेड अल्फा बाई 2 और स्टैंडर्ड एरर या स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टी. ये फॉर्मूला था हमारा उसके लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए. ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस. तो टी हमारा क्या है, वाई कैप है. तो वाई कैप में यहाँ पे अगर हमारा जो सिग्मा नोन होगा तो जेड करेगा, नहीं तो हम टी रख लेंगे यहाँ पे भी, और वेरिएंस भी उसका निकालना पड़ेगा. तो दोनों को पुट करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. देखिए, तो ये सब तो आपने नहीं करना है, बस खाली आपने तो इसका फॉर्मूला देखना है. देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है. और बी का तो देखिए ये बनाया मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो बी कैप माइनस, तो अभी हमारा सिग्मा अननोन था तो इसकी जगह टी अल्फा बाई 2 ले लिया. डिग्री फ्रीडम वही रहेंगी n माइनस 2 ही, है ना, सिग्मा कैप. तो ये होगी लोअर लिमिट, ये होगी प्लस अपर लिमिट. इसने कहीं वाई कैप भी तो निकाला, आगे होते हैं. तो बी का निकाल दिया, ये निकाला कॉन्फिडेंस पर प्रेडिक्टेड वैल्यू वाई कैप के लिए. तो वाई कैप का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा. टी जनरली सिग्मा नोन ही रहता है, तो वाई कैप टी माइनस टी अल्फा बाई 2 सिग्मा, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो ये आएगा इसका वेरिएंस
वाई कैप का, तो ये वेरिएंस आ जाएगा, यहाँ पुट अप कर देंगे। तो ये भी फॉर्मूला बुकलेट में गिवन है, अगर आपसे पूछता है तो आप निकाल सकते हैं इसको इजीली। केवल आपने देखिए मेन जो इसमें अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे दिक्कतें आती हैं इस क्वेश्चन करने में, केवल अगर मैं मेन कहूँ तो आप अगर आपने सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट कर लिया तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे फॉर्मूले आपको गिवन है। एक तो आपको सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना आना चाहिए, एक आपको एस एस एक्स वाई का फार्मूला पता होना चाहिए, एक आपको एस एस एक्स का फार्मूला आना चाहिए और एक एस एस वाई का। अगर ये सब आपसे निकालना आता है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में, आपने केवल वैल्यू पुटअप करनी और कुछ नहीं करना। एक्स बार आपसे निकालना आता है, देखिए हर जगह वही फार्मूले यूज हो रहे हैं, वही फार्मूले यूज है हर जगह, कोई भी आप ले लेंगे सभी जगह यही फार्मूले यूज है, ठीक है। बाकी फार्मूले सब गिवन है, बस एक तो ये आपसे निकालना आना चाहिए, ये सब निकालने आने चाहिए, क्योंकि इनके फार्मूले अलग से कोई शायद पता नहीं गिवन है कि नहीं है, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी तो आपको केवल फार्मूले वैल्यू पुटअप करनी। चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन